Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome you all in Unscripted Greatness, where we celebrate people by capturing their raw truth. This is our very first episode. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हुए हैं. He is a pastry chef and he is Chef Mr. Rahul Srivastava, who's not only just a chef but owner of the 18 different ventures, जिनके बारे में उन्होंने इस पॉडकास्ट में बात की. So stay tuned and watch till the end. चलिए तो hello everybody. Hello. Hi Rahul, Mr. Rahul Srivastava. We have our first guest, our first special guest जो है हमारे साथ हैं अभी Mr. Rahul Srivastava and he is a very celebrated chef. बहुत celebrated chef हैं आप और he is the founder and founder and a chef in World of Cookies. तो please आप अपने बारे में कुछ बताइए. If you can just share your who are you and what are your ventures and what are you working at now? So, hello everyone. Thank you for having me over here. And I'm basically a dreamer who started working on food, basically, like as every foodie out there, who is wanted to create something for themselves or for their family. But I ended up making like a lot of money from that, and that money made me come to this part of life because previously when I used to like do baking and all those things, I was not like fully integrated, like having a brand and having a different ventures and all those things. But now I have a lot of things that is going on behind the scenes, and also like we just recently launched FMCG lineup. So there are a lot of things that is happening, but I'm based from Bhilai, Chhattisgarh, and I deliver pan India, like all the cookies, brownies, chocolates that I make delivers pan India. And there's no one in my team. Basically, I'm the only one that is doing everything from social media to everything. So you can understand the tiring journey of a solo entrepreneur. But at the end of the day, it is fun because obviously baking is therapeutic. So obviously that comes as a point that okay, this can happen, and we don't have to like follow the rules of normal hotel industries. Like I have to bake this only and I have to do this only. It's up to me what exactly I want to do. So yeah, that's the main crux of the entirety of the thing that I do in my life. Okay, that's very great. Also, we were talking when we were talking off screen. You mentioned you have some ongoing ventures like you're working with. So basically, that is something that is still hidden from the world. And the majority of the things that we are working is basically that we are doing some influencer marketing for our products right now. And once that gets approved, then only we will be like revealing it to the world because that will take a lot of legal aspects. So that's why we have not like obviously revealed a lot of things. But yeah, we are working on 18 different projects, and that includes fragrances. Then also, if you know, like there's a lot of makeup products for females, but there's like literally 0 to 10 or 20 products for men's. So we are working behind the scenes for men's, like bringing liquid foundations, then makeup products like blush and all those things for men industry. Because for men industry, it is very limited and it is like duopoly or monopoly is there. So we are trying to bring that down to like having a easy going price of like 250 rupees starting. And then there's a brand for fragrances that is focused highly on the premium end market that will be like ranging from 13,000 to 29,000 rupees. Then there is my industry that is culinary. So in that there are five segments that I'm working on. First is the chocolates that is like made from scratch, like the beans has been sourced from India and also abroad. And then we make chocolate from that. Then there's cookies that I do, like World of Cookies. Then there's an FMCG lineup because obviously I have been experience of like 7 to 8 years in this culinary industry. So I have gathered a lot of information in that field, like all those fields, like Indian content, the Chinese, like whatever you can name it. So we are building on developing FMCG brands for that as well. Then there's the tasting sessions and masterclass that we do, like teaching and all those things. So people come and learn how to exactly make a recipe. Like
not exactly copy pasting a recipe, but yeah, recipe development, because that's what I have trained myself doing. And then there are a lot of apps like SaaS based softwares. So there are SaaS based softwares in making, then there is a website making, then we are doing events, then there's art. So there are almost 18 different ventures on which I'm working, and Damn. everything is majorly solo entrepreneur journey. So yeah. You're just doing a lot of things. You have a lot of things Yeah, on your plate. yeah, That's yeah. insane. That's really, and that's commendable. That's impeccable. Thank you so Do you much. have anything or only you are doing it? You're having No, a team behind basic. you? No, I have only social media team and marketing team that do majority of that work, because I don't understand Facebook, WhatsApp, Instagram, nothing. Like it is not my forte. I can just bake and I can relax in my own life. But if I have to like market it, then I need to have a team. So my buddy that is there with me working for the fragrances brand, because obviously that is like 13,000 to 29,000. So it is a premium range. So for that, his team is working and we are working with him. And then like basically I'm working with him and building that, giving the inputs for the work that we are like currently focused on, like the fragrances, and then there is a makeup production, all those things. So yeah, that is right now happening. Why did you only choose this pastry chef? Why not any other? Like why only baking? Why not cooking and all the other like Chinese and all? Why not that? Why only pastry chef? uh Basically, no, that's related to my health actually. I'm fat, obviously, so having that, then I'm in the hot kitchen. I will be ending up having a basket rather than something else like a food or something. So that's why I decided to just go for a environment that is cold, and pastry industry is super cold. Like we have ACs turned on, so I enjoyed that rather than having workout in the kitchen. So yeah, that's the Was thing not that is expecting there. your Yeah, answer. we were not expecting. We were imagining some professional True. walkthrough you will give us. But not this No, reason for real, yeah. I do That's insane. Like I do Indian having cooking. Like yeah, I do Indian cooking. Like I do khichdis and all those things I make, and proper like authentic Indian cuisines also I make. Last Saturday we made dal bati and churma at home. So I enjoy making those things. But if you call me like having a professional setup, then I don't think so. I will be like eager to do that because of that same reason. so then like you mentioned you do cooking also, right? Then what's your first memory of baking or cooking anything? The first memory of First memory was ice cream cake, and that was 2007. At that time, I didn't knew that there's something like ice cream cake even called, and I just made an ice cream and placed it on a bakery cake that was given like a pound cake or something, and just store in the freezer. And then next morning, I ate it, and I was like, "Bro, I made ice cream cake." Later, I realized it's called cassata. So okay. okay. Quite a journey. That was a journey that was like, okay, I can do something. I don't know what, but yeah, let's try this. That's good. That's good. या अगर आपने पेस्ट्री शेफ और शेफ इन ऑल इफ यू हैवंट चोजन द करियर देन व्हाट Hmm. वुड बी आपने क्या करियर चूज किया होता अगर आपने ये नहीं किया होता Uh, I was doing CA and CMA, so might have became a CA or ओह CMA right till now. If I have not given up, because I failed for like I think so 8 attempts. So after that, I was like, bro, नहीं होने वाला, रहने देते हैं, अच्छा हो गया जितना करना था हो गया, खाना बनाओ खुश रहो फुल सब। पर देखने जाए तो तो अच्छा ही हुआ हाँ, मेरे लिए अच्छा हुआ कि मेरे को लोगों अच्छा को हुआ खाने खिलाने मिलता है, एंड लोगों की हैप्पीनेस देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग खुश होते हैं खा के प्रोडक्ट्स। तो बहुत नहीं लोग, मेरा कई लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, कई लोग अफोर्ड कर लेते हैं। तो उसमें भी एक फैक्टर समझ में आता है कि हाँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जो इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज है जो सीएसए में बन के तो नहीं जी मिलता मेरे को, वो चीज है। नहीं तो ये हम लोग को भी आपको देख के हम सबको आपको देख के बहुत खुशी मिलती है कि नहीं यार आप जो है ना
आप best है। आप नहीं, आप हम आपको इमेजिन नहीं करना यार, आप जो है यू आर द शेफ, यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शेफ, बट आप जो है आप बेस्ट है यार। Imagine being him being a CA. कुछ नहीं, फिर हम इनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि आप बताइए कुछ अकाउंट्स के बारे में। Yes. जीएसटी ऐसा क्यों कैलकुलेट हो रहा है, ये बताइए सर। यार मेरा जीएसटी का स्लैब क्या है, क्या 20 लाख के ऊपर, 30 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर क्या लगेगा, ये क्वेश्चन रहता है। उसमें ही चलते रहता, उतना ही रहता। हम लोग मेरे कॉन्वर्जेशंस भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, फिर मैं उतना छोड़ो, मैं अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस के ऊपर भी नहीं आता। लाइक यहाँ आने का रीजन ही वही है कि मैं शेफ बनाऊं, तो वो भी एक चीज है। ये हम भी फॉर्चुनेट है। अच्छा शेफ बन गए, वरना हम फर्स्ट किसको बुलाते हैं। तो अपने अपना अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस का अकाउंटेंसी देना पड़ता ना। हाँ, फिर हम बैकएंड में आपसे काम कर रहे हैं, ये हो गया है, अब आप इसको मैनेज। हाँ, अब पैसे मैनेज करो सर, बाकी सब छोड़ो। आपने इतना सारा मेंशन किया, यू डू सो मच, लाइक डोमेन्स भी डिफरेंट है, खुद से बेक करते हो, यू आर द ओनली बेकर ऑफ योर ओन ना, मतलब आपका खुद का द सिंफुल लव कि आप खुद बेकर हो। तो आप खुद के लिए कभी कुक करते हो? डू यू कुक फॉर योरसेल्फ? नहीं, खुद के लिए भी बनाना होगा तो फिर क्या मतलब है यार। खुद के लिए कोई 4 घंटे बाद, देखो प्रॉब्लम नहीं है खुद के लिए बनाने में, बट प्रॉब्लम इज कि 4 घंटे खाना बनाओ एंड 4 घंटा बर्तन धो एंड सिर्फ 4 मिनट में खाना खत्म। अच्छा, नहीं तो जैसा जैसे हम बोलिए। हाँ, अरे जैसे हम देखते हैं कि हम काफी शेफ्स को देखते हैं कि वो खाना बना रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर उनको मतलब वो खुद ही वो खाना बना के खा, जैसे हम अगर देखें तो रणवीर बरार और इन लोग के वीडियोस देखते हैं, वो बनाते हैं, वो खाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं, आपकी कोई फेवरेट कोई ऐसी रेसिपी या कुछ ऐसा लगता हो यार ये चीज मैं बनाऊंगा, आज मैं खुद के लिए बनाऊंगा, संडे है आज मैं खुद के लिए कुक करूंगा और ये चीज मैं बना के खुद खाऊंगा, ऐसा लगता है आपको कभी? मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा चीज जो मैं खुद के लिए बनाता हूँ वो खिचड़ी, बिकॉज मेरी मॉम को खिचड़ी पसंद था, तो वो मेरे हाथ की खिचड़ी खाते थे, तो मैं उनको खिचड़ी बना के खिलाता। तो अब वो ऐसा हो गया कि वो परमानेंट हो गया, हर शनिवार को खिचड़ी बनता है, अलग अलग टाइप के, कभी बंगाली खिचड़ी बनेगा, कभी तेलुगु खिचड़ी बनेगा, कोई भी खिचड़ी बनता रहता है, रैंडम रैंडम खिचड़ियाँ जो समझ में आता है। जो मसाले दिख गए उसको उठा के डाल दो, अच्छा लगा टेस्ट तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम तो खा ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम तो शेफ, हम तो एक्सप्लोर करते हैं, राइट? हम एक्सप्लोर करें, क्या पता उसी बहाने एक रेसिपी बन जाए, मैं उसकी बुक छाप दूंगा, तो खिचड़ी कुक बुक, वो भी एक चीज है। लॉन्च करना आप इधर ही से, अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस से लॉन्च करना। डन। यस। आपके संघर्ष क्या थे आपके जीवन में, आपने की ये जर्नी कैसी रही है थ्रू आउट, व्हाट वाज योर स्ट्रगल्स, योर थ्रू आउट योर लाइफ, हाउ टिल यू बिकेम एंड आफ्टर यू बिकेम शेफ, व्हाट वाज योर जर्नी, मतलब आप हाउ वर यू एज अ किड, आप फिर स्कूल में कैसे थे, उसके बाद कैसे थे, क्या क्या हुआ आपके साथ, और फिर आप इस जर्नी में, इस पाथ में कैसे आए? सो मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो क्लास 1 to class 8 आई वाज अ स्कॉलर, लाइक हैविंग गुड मार्क्स, 90% एंड अबव मार्क्स। देन 9th एंड 10th में मेरे को नहीं पता क्या चस्का लगा, एंड मैं 9th में सप्लीमेंट्री लगाया, 10th में 40% लाया। अच्छा, तो आई वाज लाइक ओके, ये तो हो गया खत्म, जर्नी की बैंड बज चुकी है। देन 11th 12th में ले दे के कैसे भी करके मैंने वापस अपने आप को स्टेबल किया, लाइक आई गॉट 60 एंड 70 परसेंटेज respectively. Then I did BCom. Like every other guy who is into commerce, he has to do BCom. So I did a BCom, and at that time I started joining a academy over here, and they called me like, Rahul, you don't need to purchase a laptop or desktop. Basically, don't do gaming. Become a CMA, and you will earn money. Well, neither I got to become a CMA, neither I got the desktop, so that's another story. But then I was like, bro, मेरे से नहीं होगा, ये फ्रस्ट्रेशन है, मेरे बस का ना है सब चीजें, मैं जाता हूँ MBA करने। मैं MBA करने चला गया पुणे, एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे इंस्पायर करे, क्योंकि MBA वाज टू बोरिंग फॉर मी टू डू एटलीस्ट। And then my friend said that let's start a cafe, like छोटा सा एक ठेला टाइप का, वो स्टार्ट करते हैं, एंड उसमें सिर्फ जो अपन बनाते हैं, जो खुद के लिए बनाते हैं, वो दूसरों को खिलाते हैं, क्या पता बिक जाए तो कुछ पैसे आ जाए।
2-3 ठो खर्चे कर सकते हैं अपने ऊपर थोड़े बहुत। And then we started earning like 70 to 75,000 from just a रेडी। छोटा सा एक ठेला था, बस उससे हम लोग कुकीज और ब्राउनीज बना बना के रख देते थे, एंड वो बिक जाता था। लाइक विद इन 2 to 3 hours वो सोल्ड आउट होता था, एंड वी वर लाइक भाई ये क्या हो रहा है, ये लाइक इतना कैसे सेल हो रहा है। लाइक हमने हमने तो ऐसा कुछ बनाया भी नहीं, कैसे नॉर्मल सा रेसिपी जो बिक रहा है। तो माय फ्रेंड वाज लाइक ये काम कर, अच्छे से फुल फ्लेजेड स्टार्ट करते हैं। सो वी थॉट ऑफ डूइंग इट, बट देन मेरा एग्जाम्स आ गए एंड फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया सीवियर, तो उसकी वजह से वो पूरा बैकएंड चला गया था। बट देन इन 2019 आई वाज इन मुंबई, आई वाज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट एंड आई वाज आल्सो हैंडलिंग एन आर्टिस्ट, because like he was performing at cafes and all those things, so I was doing that, like helping him. And then also I got super sick, and I think so I lost like 3.5 to 4 lakh rupees in just medicines in the hospital. एंड देन आई वाज लाइक भाई नहीं होगा, ये सब चीजें मेरे बस का नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे, अपन वापस घर चलते हैं, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। देन आई वेंट होम एंड माय फ्रेंड सेड दैट जॉइन लेवॉन एकेडमी बिकॉज इट विल लाइक क्लियर यू, लाइक स्किल जो है उसको शार्पन कर देगा। तो आई ज्वाइंड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल वेयरिंग दिस लेवॉन का शेफ कोट दैट इज देयर। So I'm still wearing it, and I wear it every time जब मेरे साथ कुछ अच्छा होना होता है या कुछ ऐसा चीज होता है जो मेरे मेमोरी में एक पॉइंट छोड़ के चले जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको भी पहनता हूँ क्योंकि ये बहुत खास है उस टाइम पे। एंड देन आई केम बैक एंड 25 मार्च 2020, हाँ, उस समय लॉकडाउन लगा एंड माई ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ कैफे वेंट लाइक ऐसा डाउन हिल। आई वाज लाइक यार ये भी गया, कोई बात नहीं, जो है वो है। बट देन माई फैमिली सपोर्टेड मी बिकॉज ऑब्वियसली पापा को कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि नहीं तू साइंस ही करेगा या डॉक्टर बनेगा, कुछ उनको ऐसा कुछ नहीं था। ही न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये बंदा कॉमर्स में घुसेगा एंड ये बिजनेस वाला बनने वाला है। तो उन्होंने कोई जो ज्योतिष से पूछा था, उसने बोला था बिजनेसमैन बनेगा, और वही चुआ, मैं बिजनेसमैन ही बना आखिरी में। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले। तो आई स्टार्टेड लाइक बेकिंग फ्रॉम माई होम, and for like 3 to 4 months I had no customer, like zero customer. And then there was a girl named Sunisha, she's my first customer because even I remember her order that she gave. So that was the first order that I got ever, and then I was like okay, ये आ गया। उसने मेरे को बोला कि नहीं शेफ आपके कुकीज बहुत अच्छे हैं, तो गिव इट अ ट्राई कि आप इसको अच्छे आगे स्केल पे ले जा सको। So I thought to make a website on Wix.com. I made a website. I started pitching my friends कि यार खरीद लो मेरे से, तुम्हारे पास आ जाएगा तो मैं उसको डाल सकता हूँ, फिर मेरे को मार्केटिंग करने में हेल्प होएगी। लाइक अ प्रॉपर नॉर्मल दिमाग लगाया मैंने, जिसको मार्केटिंग ना आती है उसके लिए। तो आई डिड दैट एंड it accidentally worked because I got like a bulk order of double chocolate cookies. I think so that was 12,000 cookies. Yeah, I got an order for 12,000 cookies and I sold it like in December. I got an order and I delivered it like so much fast that I know how many hours I have worked for it. And then I was like, okay, ये तो आ गया, पैसे तो है भाई इसमें, इसको खींचा जा सकता है। उसको मैंने वहां से खींचा एंड उसको ऐसा खींचा कि राइट नाउ डबल चॉकलेट कुकीज इज द हाईएस्ट सेलर वी हैव इन द स्टूडियो, and I have sold it like almost 75,000 pieces of it. And along with that, I have sold like double chocolate brownies also. That is also like 20,000 pieces till now. But in that everything, like every growth that we have, there's obviously a downfall in every business. So that started in April 2023 when my mom like fallen in the house and she got accident, and then we went to hospital, came back, and she started blood vomiting. So that was अच्छा, like the basically black day for us because from that point of time to September 2024, World of Cookies was in straight up loss. Like we opened just for 10 to 5 days every month. Every month there was some issues like either I was sick, either I met with an accident, and even my mom expired in August of 2023. So after that also I have like a lot of downfall and not a lot of hope and you can say inspiration to bake something because majority of time I was like यार आज मैंने इतने का सेल किया, घर आता था मम्मी को बताता था कि मम्मी इतना बिका, but it was not happening anymore. So I was like यार अभी मन नहीं है खाना वाने का, छोड़ो रहने दो।
तो मैं उस चक्कर में बनाता ही नहीं था कुछ भी, मतलब मैं काम करने से अपने आप को हटाने लगा था. Then recently I went to Singapore on July in my birthday, and at that point of time I realized कि बहुत सारे चीजें जो है जो मैं करना चाहता था वो सब डिले हो गई हैं, मतलब क्योंकि तब तक मेरा दिमाग ट्रिगर नहीं किया था सही से उस चीजों को. अगस्त में मॉम का 1 साल कंप्लीट हुआ, इसी अगस्त में, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, अब मैं अपने आप को थोड़ा पुश कर सकता हूँ शायद तक. सॉरी. तो I started like researching all those things that was making me like earn, like earn, not earn, I can't say, you can say grow basically, like World of Cookies को grow करना था, तो उस टाइम पे क्या चीजें grow करके जो शुरू में help कर रही थी, तो I started researching it. And then I was like, okay, let's start it. I came back from Vrindavan and now I can do it. But then I got injured like again, and I got a bed rest for a month. And when I recovered it, I got swine flu. So that swine flu also happened to be a 1 month long run. And then I started my studio again in October. And ever since October happened, I was like, नहीं, अब इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, कितना भी तबीयत खराब हो. I have to push and push and push. And now in just a month, we have made 55,000 rupees. So again, I'm back on track. Touch wood. Basically, that's the only thing that is there. But majority of the thing is that everything is a downfall. Not like everything looks like. Obviously, I don't post a lot of things on Instagram. Like people think that I'm roaming around and I'm happy and all those things, but it's not exactly true. There's a lot of downfalls happening behind the backs, but it's the thing that we have to be motivated to work and work and work. So I just keep on pushing myself कि हाँ ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. And now you can see, like I just posted yesterday that we are coming on Amazon and Amazon and Flipkart, and then we are also applied at Blinkit and Big Basket. So if that also works, our products will be available at the shelves of Blinkit and Big Basket, like 8 minutes away from you. So we are working on that. Like I was like, yeah, जितना था जो delay होना था हो गया. Now I have to push it hard because right now I am on a thing called, like, me and my friend is on a thing called no expense, only earn money. So we do this whenever we feel like we are drowning in social media reels and all those things. So we do that, and it is basically we don't have to like over expend, yeah, like spend on anything. Like if we want to eat something, just make it and eat it like that. So don't invest a lot of money on outside food. Like if you open Zomato, there is like 30-35% charges that they charge. So if your product is 100 rupees, it will become 130 rupees. So you're paying 30 rupees extra rather than purchase, like make something for 30 rupees and eat it. So you will save 100 rupees and you can invest in the stock market and grow yourself. So yeah. So I'm doing that, and right now we are on budget. Like we set a limit of 1 lakh rupees, earning 1 lakh rupees in 1.5 months. So that was basically the whole journey, and in that I was like, whenever I became sick or something, that's when any idea, like khurafati idea, happened, and I made a fragrance brand. I made a perfume. I don't know what all brand I have created in those kind of days. So yeah. So you do research while you're lying on the bed. Yeah, I do research. Like I start my laptop, bro. इसको खोल. आजकल chat GPT भी है, so you can ask him anything. Like he knows everything about me, so I just ask him like what I can do else. He replied to me, "You can become a क्या लिखा था? Thriving entrepreneur." I was like, ये क्या होता है अभी? ये समझा मेरे को. So yeah. आपको how was that moment when you got this chef का What was jacket? that हाँ, clicking point? Chef का jacket. हाँ, अच्छा, हाँ. Oh. Like how did you feel when you get, like when you were wearing this jacket for the first time? What was that moment like? सारा कुछ freeze हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था? AC होगा ना वहाँ पे? Actually, when I joined Lavonna, so they gave us this chef coat, like it was custom made, and then we had our name also. I don't know whether it will be visible or not. Rahul Now Srivastava. we can see. Visible. Yes, yeah. So they gave us this, and they were like calling us chefs.
like every day. Like we were not even chef at that point of time, but they were calling us chef, and that gave us a lot of confidence. Like, yeah, अब तो मजा आएगा, अब आज कुछ बनाएंगे. And then we realized ये 6 week का training है and ये बहुत hectic होने वाला है. And it turned out to be like that because I used to live in Marathali in Bangalore, and मेरा academy जो है that was in Indira Nagar, and it took me half an hour to reach in the morning, but it took me 4 hours to reach back to my home in the evening. तो ये इसको पहनने का जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो चुका था. आई वाज लाइक यार कहाँ आ गया हूँ मैं, क्यों आ गया हूँ यहाँ पे. बट व्हेन आई गॉट इट लाइक ऑफिशियली, लाइक जिस एट द एंड ऑफ द era, like at the end of the education period of us, like for the 6 weeks certificate program that ended on, I think so it was 22nd February. Yeah, 22nd February 2020. So it ended on that day and we got our certificates and all those photos and all those things. Then I realized, yeah, मैं शेफ बन चुका हूँ. So, yeah, वो चीज था. मतलब अभी भी ऐसा लगता है क्योंकि जब भी पहनता हूँ तो ऐसा लगता है यार आज तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ. लेकिन वही जब मैं नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस उससे नीचे जाता है. तो वो चीज होता है. बट या शेफ कोट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर आप नहीं भी शेफ हो ना और आप पहनते हो उसको, शेफ कोट के पहनोगे ना, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है. बिकॉज वी लाइक एट डब्ल्यूसी वी बिलीव क्वालिटी. लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको क्वांटिटी देंगे और रुपीज सबसे कम लेंगे. यहाँ पे आपको क्वांटिटी कम मिलेगा लेकिन क्वालिटी ऐसा मिलेगा जो कोई नहीं दे सकता. तो अभी चाहे चॉकलेट्स हो गए, बटर हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे यहाँ सब कुछ एक्सपेंसिव वाले. मतलब ये नहीं कि एक्सपेंसिव हम जानबूझ के खरीद रहे हैं, बट इट इज बेसिकली बिकॉज की क्वालिटी एक्सपेंसिव से ही आने वाला. नॉर्मल क्वालिटी में फिर आपको वो मार्जरीन वाले कुकीज मिलेंगे जो हर बेकरी में रहता है. तो दैट डज like give us the proper वो thing. And इसको पहनने का रीजन ये था कि why give someone health issues when you can give them like proper diets and proper work according to them. Because अभी जैसे मेरा बहुत से लोग आते हैं जिनको डेयरी फ्री चाहिए या फिर जिनको शुगर फ्री चाहिए. I made a cake with water, like literal water based cake है. तो वो उनको पसंद आता है एंड वो इतना पसंद आता है कि वो रोज जाता है. लाइक दैट गाय एवरी डे ऑर्डर्स इट. ही वर्क्स इन अ जिम एंड ही इज लाइक भैया मेरे को केक बना के रख देना, मैं शाम को आके ले जाऊंगा. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड सिंस द बिगिनिंग. तो इस शेफ कोट ने मेरे को चीज दिया है, ये चीज है, ये मैं बोल सकता हूँ. मुझे बेसिकली वही रहता है कि हम लोग क्वांटिटी प्रीफर ना करके क्वालिटी प्रीफर करते हैं. एंड उसी की वजह से जैसे जो भी चॉकलेट्स या जो फ्लावर भी यूज होता है सब हाई क्वालिटी वाले रहते हैं. 245 फ्लावर वो 250 रुपीज केजी है. लाइक नॉर्मल मैदा 40 रुपए में मिलता है, हमारा मैदा 245 का आता है. तो वो अलग अलग वेरिएशंस हैं जो आपको अलग करते हैं ब्रांड से, मतलब बाकी बेकरी से. एंड इस वजह से हम लोग लाइक मेरा ये मानना है कि भिलाई में तो आई डोंट थिंक सो आई हैव अ कंपटीशन. लाइक मे बी होगा बट मेरे सामने तो अभी तक कोई नहीं आया. क्योंकि जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं जो बाहर जाके खाते हैं या किसी और शेफ से भी खाते हैं, लाइक नो ऑफेंस टू दोस शेफ्स ऑब्वियसली, आपको ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट उन लोग मेरे जो कस्टमर्स हैं वही लोग मेरे को बोलते हैं यार आपके जैसी कुकीज कोई नहीं बना सकता. तो दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है मेरी जैसी कुकीज कोई नहीं बना सकता. मतलब ईगो में आता है बट नहीं देना चाहिए. बट स्टिल वो एक पार्ट है जो रह जाता है. बट हाँ एक चीज है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया. एंड दैट्स माइट बी द ओनली रीजन कि जो कस्टमर्स मेरे पास आज से 6 साल पहले थे वो सेम कस्टमर्स आज भी हैं. लेकिन वो गए नहीं दूसरी जगह पे. तो वो चीज प्रूव करता है कि हाँ ये मेरे पास रहेंगे. मतलब अगर मैं अपनी क्वालिटी चेन बन के ना गिराऊं एंड मैं उसको अच्छे से रखूं, जैसे क्वालिटी यहाँ है वही क्वालिटी हर जगह रहे, तो आई थिंक सो ये बिल्ड करेगा. बट यार ये कोट का ही एक रीजन है जो उसको कॉन्फिडेंस को देता है. तो वो चीज रहेगा हमेशा. आपकी जर्नी वाज लाइक रियली वेरी Inspiration. इंस्पिरेशनल. True. मतलब ऐसा नहीं है, काफी कुछ सीखने को मिलता है. हाँ. देयर आर लॉट ऑफ लेसंस. मतलब ऑडियंस भी देखेगी बस तो ट्राई करते हैं. ऑडियंस के ऊपर हर कोई, अब ऑब्वियस बात है कि हर कोई मेरे जैसा सेम स्टेज से नहीं गुजरा होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिल रहा है और कुछ अपने लिए कर रहे हो, लाइक आई एम एट द एंड ऑफ द डे आई एम वर्किंग ऑन माई ड्रीम. भले ही मैं 9 से 5 काम न करके मैं 24 घंटे काम करता हूँ, उसमें मेरे को लगता है यार और 4-5 घंटे मिल जाते तो अच्छा रहता. तो वो चीज है. बट स्टिल इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, अगर किसी एक बंदे को भी फर्क पड़ता है तो फिर मेरे को
वो पॉइंट बहुत रहता है मेरे लिए एक्चुअली। वो बोलते हैं ना, मेहनत में भी मजा होना चाहिए। आपका वो हाँ मेहनत नहीं है, आपकी पिज्जा है। या हमको हमको ऐसा है, हाँ चलो आज बनाते हैं, आज ये बनाते हैं। लाइक मेरा मेन्यू चेंज होता रहता है हमेशा, तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा फिक्स भी नहीं है कि तुम मेरे यहाँ पे आओगे तो तुमको वही डबल चॉकलेट कुकी मिलेगी, विटनेस वही किया है मैंने। अडाप्ट होके। हाँ ये विटनेस हुआ है। ये मैंने विटनेस किया है ये चीज। तो यही सब चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, आप ये बताइए कि मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन चूजिंग बेकिंग एज अ करियर? अगर मतलब कोई जब यंग ऑडियंस सुनेगी ये, जो प्रोबेबली अर्ली 20s में होंगे, तो हाउ विल यू रिकमेंड देम बेकिंग एज अ करियर? और अगर बेकिंग नहीं होगा, देन सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या उसके अलावा आप उनको बोलोगे कि ओके दिस इज नॉट द करियर बेकिंग, तो आप यहाँ यहाँ जा सकते हो, ये करियर आप चूज कर सकते हो। व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, मतलब बेकिंग एज अ करियर इंडिया में क्या है अभी राइट नाउ? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? देखो इंडिया में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है इसकी, क्योंकि आज की डेट पे मेजोरिटी ऑफ द सिटीज हैज लाइक अ लॉट ऑफ culinary academies and baking academies। ठीक है, बट द थिंग इज ना दैट अगर आपको बेकिंग एज अ करियर चूज करना है, the major thing that I will suggest now, it will be like don't go for the money aspect of it. If you go for the money aspect, you will degrade the quality of your products, even degrade the amount of the things that you use for your products. Like आपको मान लो चॉकलेट यूज करना, आप मॉडल का चॉकलेट खरीद के ले आओगे, कंपाउंड चॉकलेट खरीद के ले आओगे, एंड वो पाम ऑयल वाले रहते हैं, वेजिटेबल ऑयल वाले रहते हैं, उस टाइप की चीजें रहती हैं उसके अंदर। तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट अगर आपको ऐसा ब्रांड बनना है जिसको लोग पहचाने दूर दूर तक भी, अगर कोई दूसरा भी कोई खाए तो वो टेस्ट समझ जाए कि हाँ ये टेस्ट तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, तो वो अगर बनना है तो ही बेकिंग में एंटर करो। अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए है कि मैं इससे बहुत पैसे छाप लूंगा एंड मैं बहुत आगे से जाऊंगा, तो वो तो तुम किसी भी चीज को करके कर सकते हो। आज की डेट में यूट्यूब वाले भी बहुत लोग, यूट्यूब वाले जितने यूट्यूबर्स हैं, मैं बहुत से 2-3 दोस्त हैं यूट्यूबर्स हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट उनको वो मजा नहीं आ रहा। लाइक लाइफ में जो किक चाहिए वो किक उनको मिलता ही नहीं। लाइक यार रोज वही काम सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रीम करो, पैसा मिलता है, बस हो गया खत्म। तो दे वर लाइक कि हाँ मिल जाएगा, बट अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ बेकिंग और एनी culinary फील्ड ना, the main thing is that don't go for the money aspect and go for your innovation and creativity aspect, because अगर आप creativity को focus करोगे ना, तो you can create a lot of things that is not there in the industry। Like we made I don't know if it is in the industry or not, but we made it a lava cookie। Basically that is a cookie cake, a base is a cookie and then उसके ऊपर न्यूटेला, एंड उसके ऊपर 3 या टाइप के 4 के जो चॉकलेट्स हमारे पास आते हैं, कैलेबू का 811 W2, लाइक 8 वन इज डार्क चॉकलेट, फिर मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, ये 3 चॉकलेट हम लोग डालते हैं। उसके ऊपर गोल्ड चॉकलेट डालते हैं, दैट इज अ कैरामलाइज टॉफी नोट का चॉकलेट, एंड देन देयर इज अ बेरी चॉकलेट, दैट इज RB1। तो 5 टाइप के चॉकलेट डालते हैं, देन उसके बाद फिर एक और कुकी का लेयर बनता है एंड वो बेक होके बाहर निकलता है, तो दैट गिव्स लाइक ओजिंग चॉकलेट, लाइक प्रॉपर लावा कुकी काइंड ऑफ अ टेक्सचर। तो उस टाइप की चीजें आप बना सकते हो, बट अगर आप बट अगर आप ना वो करोगे ना कि नहीं मेरे को सिर्फ पैसे चाहिए, तो आप एक स्टैंडर्ड रेसिपी बनाओगे जो होता है हर एक कैफे का, होता है मॉकटेल, देन एक साइड डिश रहेगा, फिर एक आपका एपेटाइजर रहेगा, फिर मैगी वैगी रहेगा, हो गया खत्म। लाइक वो उसी में रह जाओगे, कभी भी बेकिंग में उसके आगे नहीं आ पाओगे। फिर बेकिंग में दूसरा एक एस्पेक्ट आता है केक। लाइक मैं केक्स नहीं बनाता, लेकिन केक डेकोरेटर्स बहुत सारे हैं भिलाई में भी, और हर जगह केक डेकोरेटर्स हैं। बट इफ यू ऑल्सो वांट दैट एज लाइक करियर अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज अगर आपका हाथ बैठा है केक बनाने में, लाइक केक ऐसा नहीं कि बेसिक केक बना रहे हो, बट वेडिंग केक्स हो गए, अच्छे फॉन्डेंट केक्स हो गए जो देखने में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बीच में एक कार्टून केक ट्रेंड में चल रहा था, बटर क्रीम से कार्टून केक बनता है, वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। तो उस टाइप की बहुत से अपॉर्चुनिटी बेकिंग लाइन में है। जैसे चॉकलेट्स है, तो चॉकलेट्स के लिए चॉकलेटियर एक करके एक होता है पोजीशन, वो है। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इट्स जस्ट अप टू यू कि आपको आपका हाथ किस में बैठ रहा है। जैसे मैं कुकीज एंड ब्रेड्स में घुसा, मैंने ब्रेड्स ट्राई किया, मेरे से ब्रेड्स नहीं बना। लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट आंसर है मेरा, मेरे से ब्रेड्स नहीं बना। मैं जब ब्रेड बनाता हूँ ब्रेड कभी टेढ़ा बनता है, कभी कुछ और बनता है उसमें, वो कभी ब्रेड नहीं बना, वो इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने उसका ट्राई करना ही बंद कर दिया। देन आई स्टार्टेड मेकिंग कुकीज, ब्राउनीज एंड चॉकलेट्स, एंड वो मेरा किक कर गया। लाइक मेरा हाथ ऐसा बैठ गया कि अभी मेरे को आप
नींद से भी उठा के बोलोगे कि राहुल मेरे को डबल चॉकलेट कुकी खिला दे, तो मैं बना के खिला दूंगा। लाइक आधा घंटा का काम मेरे लिए, वो ऐसा हो चुका है। तो अगर अपना स्किल मास्टर कर लो, जो चीज मैंने किया लवान जाके अपना स्किल मास्टर किया, तो आज के डेट पे बहुत से अकेडमी से जहाँ आप कर सकते हो। तो वहां जाओ, अपना स्किल समझो कि आपको क्या चीज आप क्या बना सकते हो, एंड देन यू कैन लाइक पुश ऑन कि हाँ बेकिंग है, बेकिंग में मैं केक अच्छा बनाती हूँ, तो मैं केक अच्छा बनाऊंगी। फिर मैं चॉकलेट अच्छा बनाता हूँ, तो मैं चॉकलेट सीखूंगा। चॉकलेट के मॉडल्स होते हैं, एक शेफ, उनका नाम मेरे को आता नहीं है याद अच्छे से, लेकिन ही मेक लाइक चॉकलेट के क्रेट्स से चॉकलेट का आईफिल टावर बना के रखे हैं वो। तो अच्छा। भाई वो टैलेंट होता है, रियल टैलेंट इट्स दैट कि आप चॉकलेट से कुछ बना सको, चॉकलेट स्कल्पटिंग जैसे। तो उन्होंने चॉकलेट से कुछ बना ही डाला लाइक। और रोज कुछ ना कुछ वीडियोस डालते हैं, मैं ऐसा देखता था, तो भाई कैसे बना लेते हो यार ये सब चीजें, मेरा बस का बना है ये सब चीजें। तो कैंडीज है इसमें, इंडस्ट्री में कैंडी है, जैसे एक हाउस ऑफ कैंडी करके एक तो ब्रांड है, तो वो भी कैंडीज बेचता है। तो उस टाइप से मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, एंड अगर आप उसमें नहीं घुस रहे हो, मान लो आपको बेकिंग नहीं हो रहा है या कुकिंग ही नहीं हो रहा है इन जनरल, देन बेसिकली इट इज लाइक कि अगर आप ये सब ऑप्शन नहीं है, तो देन यू कैन गो फॉर ये। अच्छा ये नहीं हुआ, ओके नो वरीज, मैं अपने आप को एडवांस करने की कोशिश करूंगा, या आज की डेट पे चैट जीपीटी से पूछो, सिंपल और दैट, या मेरे पास ये सब स्किल्स हैं, या ये मेरे को ये सब आता है, मेरे को बता मैं क्या चीज कर सकता हूँ। वो कुछ तो बता ही देगा, रैंडम सा चीज, उस पर ट्राई करके देखो। अगर वर्क कर गया तो अच्छी बात है, बिकॉज आज की डेट का एआई बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैं तो खुद अपना सारा काम एआई से करवाता हूँ। कैप्शन लिखना है, एड जनरेट करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी रैंडम सा काम होगा, मैं उसको बोलता हूँ, भाई तू इसका आंसर बताया मेरे को। या इवन कई बार मेरे को जैसे रेसिपीज के न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना रहेगा, तो मैं उसको अपनी रेसिपी लिख के भेजता हूँ, और वो मेरे को न्यूट्रिशन वैल्यू लिख के भेजता है। हो गया काम आसान। तो इट्स अप टू यू, बट या उस पर फुल्ली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वी डोंट नो कि वो एक्यूरेट है भी कि नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्रक्स का काइंड ऑफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को ये कर सकता हूँ, या मेरे पास ये स्किल सेट है, तो मैं इससे ये चीजें ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि अगर उसने आपको 10 चीज भी लिख के दे दिया कि यार मैं कॉपी राइटिंग कर सकता हूँ, मैं राइटिंग कर सकता हूँ, मैं बुक छाप सकता हूँ, मैं ऑथर बन सकता हूँ, मैं पोएट बन सकता हूँ, कुछ भी ट्राई करो, 10वां चीज ट्राई करो आप, क्योंकि आप 20s में हो, आपके पास लेट नहीं हुआ है ट्राई करने के लिए। वो लेट उसके लिए होता है, लेट वैसे किसी के लिए नहीं होता है, लेट तो आप 40-50 साल की उम्र में बता सकते हो। बट इफ यू वांट टू लाइक पुश ऑन योरसेल्फ, देन दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन से कि इस चीजों को यूज करोगे तो एडवांस टेक्निक बहुत सारी है आज की डेट पे, तो कुछ भी यूज करो आपको फायदा मिल ही जाएगा, वो है। यू नो इसी के आगे लाइक अगर किसी को खोलना है लाइक कैफे, नाउ वो तो हम्म। शेफ बन गया, लाइक समवन हैज हम्म। चोजन बेकिंग या कुकिंग एज अ करियर हो गया। बट नाउ अगर उन्हें कैफे या रेस्टोरेंट साइड में जाना ही है, तो बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है? लाइक इफ यू सजेस्ट व्हाट विल बी लाइक एक फ्लो बोल सकते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज कि वो फॉलो कर तो लॉन्ग रन में या कैफे विल बी सक्सेसफुल थिंग, उसका क्या टेक है आपका? देखो, लॉन्ग रन में ना सक्सेसफुल का बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका होम बिजनेस वर्क कर गया। ठीक है, हाँ अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप अपना कैफे ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कल कोई प्रॉब्लम नहीं, कि वो डूब भी जाएगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड मतलब मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, ही ओपन अ कैफे एंड he ran for like 3 months and then his business went downhill, so he just shut down the business and he started something else. So I was like, इसको बोलते हैं पैसे होने का फायदा, बट ठीक है। तो अगर आपके पैसे नहीं है एंड देन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग कि हाँ नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं कैफे ही ओपन करना चाहता हूँ या कुछ है, तो एक होम बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि आज की डेट पे क्लाउड किचन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। यू कैन हैव अ क्लाउड किचन, और आपका जोमेटो के थ्रू और स्विगी के थ्रू आपका हो सकता है। नहीं भी छोटा शहर है तो आप आराम से खुद ही जाके डिलीवर कर सकते हो, एक बंदा रख सकते हो। और अगर कोई बड़ा शहर है तो जेप्टो और ये सब चीजें आपके पास ऑप्शन है ही। तो आप अपने घर से स्टार्ट करो, देखो कि आपके प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं, कितना क्या है इसका, कैसा स्केलेबिलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, या मेरे को एक आउटलेट की जरूरत है ही, मेरे को चाहिए कि नहीं बिना आउटलेट के मेरा काम नहीं होगा, मेरे को स्पेस चाहिए, तो एक छोटा सा किचन जैसा रखो, सिर्फ किचन भी, मतलब आउट कैफे मत बनाओ, क्योंकि कैफे बनाओगे उससे बहुत इन्वेस्टमेंट आता है। मैंने ही 18 लाख रुपए घुसाए मेरे दुकान में, मेरे को पता है। और दिखता क्या कुछ नहीं, वो 18 लाख जैसा दिखता भी नहीं है, बट वो घुसे हैं उसके अंदर। तो आई नो डैट कि वो उससे पैसे जाते हैं, तो फिर अब कितना बुरा लगता है कि अगर दुकान ना चले तो आपका क्या दिमाग खराब हो रहा है, वो मैं जान रहा हूँ। बट द थिंग इज दैट इफ यू वांट ना कि हाँ मेरे को घुसना ही है इस बिजनेस के अंदर, तो
होम बिजनेस स्टार्ट करो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आपका ग्रो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज आप मान लो जाओगे आप अवन खरीदोगे, अवन और आपको टर्बो यूटेंसिल ये सब तो आपको हो भी जाएगा, मैक्स टू मैक्स 30-35 थाउजेंड में आपका काम हो जाना है अगर आप बेसिक अवन लेते हो। और यूनॉक्स और जो बड़े बड़े ब्रांडेड अवन लोगे तो 1.5 लाख के तो अवन ही आते हैं वो, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो वो तो तब आप खोलो जब आपके पास प्रॉपर फैक्ट्री आउटलेट है, मतलब आप सोच के रखो कि नहीं मेरे को आगे जाके इसको करना ही करना है। और अगर आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, देख लूँ मैं एटलीस्ट ट्राई करके देख लूँ मेरा पैशन कितना फ्यूल अप है। या कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग शेफ बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो शेफ का ट्रेनिंग किए, लेवॉन से किए, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर married, either married or either working as a CA or CMA or whatever they are working in. Like not this line, like they just drop it. So they practically wasted like a 1,90,000 fees and they just went ahead with something else. So if they have started like invested 5 to 6 lakh rupees and then they have changed it and then अगर वो बंदा छोटा घर से होता तो उसके घर वाले उसका जीना हराम कर देते, बाकी छोड़ दो, बाहर वालों को छोड़ दो, घर वाले ही बोलते तू 10 लाख रुपए घुसा दिया और अब उसको बंद करके दूसरे के जा रहा है घर। तो इसके अच्छा है कि आप घर से स्टार्ट करो एंड घर से समझो कि हाँ अगर घर से आपका सेल हो रहा है, एक मेरे मान लो 20 कस्टमर हो गए या फिर 20 के 100 कस्टमर हो गए और वो बोल रहे कि नहीं भाई आप एक आउटलेट खोल दो हम लोग वहां आके खाना चाहेंगे, तो आप ओपन कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो मैं स्टार्टिंग स्टेज में हूँ तो डोंट गो फॉर इट, बिकॉज क्लाउड किचन का फायदा क्या है, जब आपके आज की डेट पे ऑप्शन है तो इसको यूज कर लो। अदरवाइज फिर आप घुस सकते हो बेकरी लाइन में अगर आपको घुसने का प्रॉपर वन है कि नहीं मैं लॉन्ग रन पे घुसना चाहता हूँ, मेरे को मिशलिन स्टार चाहिए, तो बट हाँ अगर सिर्फ ट्राई करना है तो फिर किचन हो क्लाउड किचन बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। और ये जो जैसे हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल कुकिंग आ जाती है, जैसे हम्म, शेफ्स जो होते हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट में शेफ्स होते हैं जो हाँ मील्स बना रहे हैं, उनका उनके ऊपर आपका क्या टेक है? एक क्या चीज बोला था आपने फिर से बोलना। Dreams, you mean? मील्स मील्स जैसे ये तो ओके पेस्ट्री मील्स। शेफ जो ट्रेडिशनल हम्म, कुकिंग हो गई, वो जो शेफ्स हाँ हो गए वो एज अ हाँ। करियर और वो एज अ मतलब उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखो उनके ऊपर ऐसा है ना कि मेरा खुद का भाई है वो करता है, ठीक है, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड एज द सेम क्लाउड किचन कंसेप्ट, बिकॉज उसने मेरे से पूछा था एंड स्टार्टेड एज क्लाउड किचन कंसेप्ट एंड क्लाउड किचन में ही उसने अच्छा खासा खींच लिया है लाइक ऑब्वियसली। बट अब वो अपना कैफे ओपन करने के स्टेज पे है। मतलब वो बेसिकली ऐसा है कि वो मील किट्स बनाता है, लाइक हेल्दी प्रोटीन मील्स जो होते हैं वो बनाता है फॉर जिम पीपल एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ही डू दैट, बट ही सेड मी वन थिंग कि यार भैया पता है एक चीज अच्छा है, एक आइडिया जो आपने दिया था दैट वाज हैविंग अ क्लाउड किचन फर्स्ट एंड देन स्टार्टिंग इट, बिकॉज शुरू में उसको पता नहीं था कि उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा इस लाइन में, बट उसको बाद में मजा आया। बट जो लॉन्ग रन पे ऑलरेडी है, जैसे मैं खुद यहाँ के कई रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता हूँ, तो वहाँ के जो शेफ्स होते हैं या फिर जो उसमें भी जैसे जो वो है ट्रेंड है, वो भी एट द एंड ऑफ द डे ना अपना खुद का खोल देंगे, मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज आप बहुत दिन तक एक बंदे के अंदर काम नहीं कर सकते। कोई भी इंसान एक जगह पे बहुत रेयरली काम करता है, बहुत रेयर होता है कि एक ही हलवाई एक मिठाई की दुकान में बैठा हुआ है सालों से। बट मेजोरिटी आज की डेट पे वैसे भी जैसा ट्रेंड है सबके सब चेंज कर देते हैं, प्राइवेट जॉब का स्पेशली वही हाल है कि आज मैं यहाँ हूँ 3 महीने के बाद मैं कहीं और ही रहूंगा, तो वो चीज मैंने देखा है। तो एक पॉइंट मेरा है, बट ये हो सकता है मेरा ओपिनियन हो कि क्लाउड किचन से स्टार्ट करो एंड फिर उसमें फिजिकल में जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली हर शेफ अलग सोचता है। बट मेरे स्टैंड ऑफ पॉइंट से जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से तो मैं क्लाउड किचन को बेस्ट मानता हूँ। लाइक मैंने खुद वही चीज किया है 4 साल तक, तो मेरे को उसके लिए मैं उस पर वो नहीं बोल सकते कि नहीं इससे मैं ग्रो नहीं किया, क्योंकि मैंने जो ग्रोथ मेरी पाई है वो 4 साल में उसी से पाई क्लाउड किचन के थ्रू। बस ये था कि मैं बाहर शिफ्ट करता था एंड नॉर्मली किचन, क्योंकि यहाँ भी एक क्लाउड किचन था, उसने शायद अभी जोमेटो बंद कर दिया पता नहीं मेरे को, बट उनके यहाँ से मैं डोसा मंगवाता था हमेशा एंड दैट डोसा वाज लाइक अ लॉन्ग लाइक लंबा चौड़ा डोसा, या फिर ठट्टे इडली करके होता है, बड़े बड़े इडली रहते हैं वो बहुत टेस्टी रहते हैं। लाइक आई यूज टू हैव लाइक भाई मेरे को एक पैकेट भिजवा देना एंड ही सेंड मी एवरी डे, तो मेरे को मेरा नाश्ता हो जाता है। तो उनसे कैसा है ना, उनसे आप बॉन्ड बना सकते हो, तो उसका फायदा ये हो जाता है कि आपको उन तक जाने की जरूरत नहीं है, जोमेटो खोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऑर्डर करो और आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन वही अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट का फिर वो अलग प्रोसेस हो जाता है बड़े रेस्टोरेंट के केस में। बट हाँ मेरा एक कंसेप्ट वही है कि मैं शुरू में क्लाउड किचन स्टार्ट किया तो मेरे को क्लाउड किचन वाले पसंद है, तो मैं उनको ज्यादा पुश करता हूँ, ये चीज है बस और कुछ नहीं।
ठीक है ना, मतलब सीख के ये मतलब अब सीख के कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आया यू कैन ड्रॉप इट आउट, इंटरेस्ट आ गया यू कैन हाँ, कैरी फॉरवर्ड. यू कैन कैरी ऑन. हाँ, वही चीज. Out of every name, why the sinful chef? पर ये ना, ये कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ वाला कंसेप्ट है. ठीक है, द Could be a सिंपल good शेफ वाज बेसिकली ना, मेरा एक्चुअली एक पेज था मिस्टर शेफ राहुल करके, दैट हैड ऑलमोस्ट 25K फॉलोअर्स एंड मैं अच्छा खासा ग्रो कर रहा था इंस्टाग्राम पे. दैट गॉट हैक्ड. ठीक है, एंड मैं ना हैक होने के बाद आई वाज लाइक ब्रो, जिसने भी पाप किया है मैं उसको छोड़ेगा नहीं. एंड माय फ्रेंड वाज लाइक एक काम करना, पापी और तेरा शेफ एक बनाते हैं. बोला हाँ, द सिंपल शेफ हो गया. द सिंपल शेफ केम लाइक दैट, ऐसा रैंडम था वो कन्वर्सेशन. मतलब अभी भी मेरा पेज है मिस्टर शेफ राहुल, बट उस पे वो प्राइवेट हो चुका है एंड उसमें कुछ 26-27 फॉलोअर्स है. लाइक वो मेरा प्राइवेट अकाउंट हो चुका है पूरी तरह से. बट द सिंपल शेफ इज बेसिकली जहाँ मैं हर एक बिजनेस से कचरा उठा कर डाल देता हूँ कि हाँ ये पेज इससे इससे पोस्ट आ रहा है. तो एक ऐसा कि जो मैं 18 वेंचर्स हैं, तो वो 18 वेंचर्स बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा ओरिजिनल है एंड ये शेफ का जो अकाउंट है इसी अकाउंट से चल रहा है. तो उनको ये नहीं आता कि यार अलग अलग बिजनेसेस है या कुछ स्कैम हो गया कुछ हो गया, कि आज की डेट पे स्कैम बहुत सारे हैं, तो यू कांट इजीली ट्रस्ट इट. तो इसकी वजह से 10 इन्फो जो मेरा वर्ल्ड ऑफ कुकीज का जो पेज है, उसके ऊपर मैं भी देखना मेजोरिटी ऑफ द पोस्ट जो होते हैं उसमें मैं टैग रहता हूँ लाइक एज अ कोलैबोरेटर, जस्ट सो कि अगर वो एड भी रन हो रहा है तो उनको ये मत लगे कि वो स्कैम हो रहा है. वो ओरिजिनल अकाउंट है जो बहुत पहले से है एंड वो रन हो रहा है. बट ये कि 10 इन्फो शेफ नाम पढ़ के लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो है. बट है जो है वो भी छोटा मोटा काम रहता है, बस हो गया. Curiosity है कि why the sinful chef, मतलब out of every name हाँ, sinful. क्यूरियोसिटी रहती है. हाँ, sinful word हाँ, like अब वो पता है स्टोरी. Sinful word क्योंकि I can सिंफुल लव था. हाँ, सिंफुल लव तो बेसिकली वो था कि मैं डिप्रेशन में था, मैं खाना वाने का आदत हो गया, मैं उस चक्कर में पापी प्यार नाम से इसको स्टार्ट कर दिया. एंड बेसिकली इट वाज लाइक कि मेरे को चॉकलेट से प्यार था, मेरे को तुमको चॉकलेट से प्यार करवाना है, इसके लिए पापी प्यार है कि तुमको चॉकलेट से एकदम पापी वाला प्यार हो जाए. वैसा कंसेप्ट मैंने उसका नाम बनाया था, तो वो रैंडम नाम था वो. बट वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है कि कई लोग उसी चक्कर में मेरे शॉप के अंदर आते हैं कि भाई ये 10 सिंपल लोग क्या है. वर्ल्ड ऑफ कुकीज समझ में आता है, कुकीज की दुनिया, बट सिंफुल लव इज लाइक पापी और प्यार. सामने द लगा दिया हो बस मैंने, द ग्रेट पापी प्यार, लाइक ऐसा वाला कंडीशन है उसका, और कुछ नहीं. courage था ना, not keeping it the हाँ. sinful love. I would have taken courage. ये नाम it's not very common. ये भी Common ऐसा ना, कॉमन कॉमन नहीं है. कॉमन ये स्टार्टिंग में ना TSL था. हाँ, हाँ, yes, I remember. ये I स्टार्टिंग में remember you TSL putting था. TSL everywhere. तो आई स्टार्टेड वो चलता TSL था बाय द सिंपल शेफ. वो ऐसा एक लाइन था, उसके नीचे में लिखा रहता था. अट्रैक्टिव भी है, मतलब अगर सोचे तो लोगों की क्यूरियोसिटी बिल्ड ही इसलिए होगी बिकॉज दे विल हाँ. फील हैमर्ड. क्या है यार सिंपल शेफ? नहीं नहीं नहीं, वी हैव नॉट हर्ड दिस, ये हमने हाँ. सुना नहीं है, ये क्या है. एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए. एक्सप्लोर करें, चेक करे कि आदमी कर क्या रहा है आखिर अपनी जिंदगी में. और वो चेक करेगा तो फिर बेचारा सोचेगा क्यों एक्सप्लोर किया भाई मैंने इस बंदे को. तो वो चीज भी, क्योंकि 18 चीजें एक साथ करना किसी के बस की बात नहीं है. मैं कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, कभी कभी मेरे को लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ. अल्लाह लाइक हर जगह से तो पैसे कमाना है, मैं यहाँ से अपने सपने पूरे कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ कुकीज से, बट कहीं से तो पैसे ही छापने हैं ना कि पॉश खरीदना है एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर पॉश सपना है तो पैसे भी चाहिए ही चाहिए. तो उसके लिए वो 18 बिजनेसेस चल रहे हैं. वर्ल्ड ऑफ कुकीज इज लाइक यहाँ सुबह उठो, तैयार व्यार हो और दुकान जाओ, खाना बनाओ, बैठो, लोगों को खाना खिलाओ, उनसे बातें करो और फिर वापस घर आ जाओ. और फिर वही सेम लूप रोज का. लेकिन उसके बीच में अगर मेरे को स्पार्क चाहिए कि हाँ यहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, तो वो पॉइंट वहां से आता है. एंड इसका हेल्प भी होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी रिवाइंड अवार्ड्स चल रहा है, तो उसमें मेरे ही बहुत सारे ब्रांड है जो सैंपल के पार्ट है, तो वो बेसिकली क्रॉस सेलिंग है. तो मैं वो सब चीजें कंबाइन कर करके कर लेता हूँ. एक ही कस्टमर बेस के थ्रू मेरे को बहुत सारे कस्टमर बेस मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है. तो वो भी चीजें ठीक उसके अंदर. आप मैनेज कैसे करते हो, मतलब 18, क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके सिंपल लव और वर्ल्ड ऑफ कुकीज में जाता है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पूरा टाइम मैनेज कैसे होता मेरा ना मेरा मेरा जैसे जो सिंपल लव पे जैसे चीजें है ना,
करते हैं ना आपको नहीं, मैं आपको वर्ल्ड ऑफ 24 कुकीज पे आवर्स कैसा है ना, वर्ल्ड ऑफ स्केड्यूल पे वो करके रखा हूँ, शेड्यूल करके रखा हूँ। तो मैं वहाँ कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड है, वो अपने आप पोस्ट होते रहते हैं। एक बार मैं बस बना के एडिट करके छोड़ देता हूँ। रहा सवाल बाकी बिजनेसेस का, तो मैंने जैसे बोला मैं स्टार्टिंग में कि मेरे पास एक सोशल मीडिया टीम है और एक मार्केटिंग टीम। तो वो मेरे फ्रेंड की हैं जिनको मैंने अपने पास रखी हुई है, उनको बहाना देके किया तुमको कुकीज खिला दूंगा, बस मेरा काम कर दो। तो वो मेरा काम कर लेते कुकीज और बाकी सबके लालच के भरोसे, और कुछ नहीं। तो मेरा मेजॉरिटी काम वो लोग करते हैं, बाकी चैट जीपीटी कर देता है। तो मेरा मैनेज वैसे होता है इंटरेस्टिंग काम थोड़ा। आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ। मतलब। मतलब इट्स ग्राफ है आपका like kind of final question है like how will you like one liner inspiration क्या दोगे आप youth को like people of our age your age वन लाइनर, inspiration do not, do not give up even if you have a broken leg, a broken heart, and you have a broken nose or anything. Like, do not give up, because if you give up now, you are doomed for your life. But if you don't give up, then you can have, like, I have 6 years of culinary experience, and then 17 पीछे में background के experiences जो चल रहे हैं वो. So just do not give up ever. Like, वो सबसे बड़ी चीज है जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए. Like, हम लोग गिव अप करते हैं ना, हमारी जिंदगी वहाँ पे पॉज हो जाता है कि हाँ ठीक. बट अगर वो गिव अप ना करो तो यू विल स्काई रॉकेट ऑब्वियसली. तो है मतलब सही में वाकई योर जर्नी इज रियली मतलब आई एम थिंकिंग आई एम प्रोसेसिंग टू मैनेज 18 वेंचर्स इज इट्स सो it's not मतलब I can't say that it is unbelievable. It is appreciating, yes मतलब commendable to manage 18 ventures और आपकी जो मैं throughout एक सही में हम्म, मेरा नहीं मेरा मतलब इंस्टाग्राम पूरा भी वैसे ही, मेरा इंस्टाग्राम और मेल आईडी खोलोगे ना तो आप लोग पागल हो जाओगे. लाइक अच्छा जीमेल में कुछ 12,000 के आसपास पेंडिंग मैसेजेस होंगे. सो आई थिंक सो. जिनको मेरे को रोज पढ़ना होता है, तो मेरी हालत मेरे को पता है. बट हाँ, ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक टीम रहे मेरे पास, जो एटलीस्ट जो बिजनेसेस जो मेरे को मतलब उतने अभी नहीं है स्टार्टिंग स्टेज में, उनको कम से कम रिसर्च कर सके. क्योंकि मैं ऑटोमेटिक तो कर सकता हूँ सब चीजों को एआई के थ्रू, बट एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज की वजह से मेरे को भी कभी कभी लगता है. बट आई डू लाइक वन थिंग कि मैं जैसे 18 बिजनेस है, 18 दिन तक उनको लाइन से शेड्यूल कर देता हूँ. तो फर्स्ट 1 तारीख को वर्ल्ड ऑफ कुकीज, 2 तारीख को सिंफुल, और 3 तारीख को आर्ट इवो, 4 तारीख को डॉन ऑफ ड्रीम्स, ऐसे लाइन से शेड्यूल्ड है 18 के 18. तो वो रिपीट में लूप में चलते रहते हैं. हाँ, किसी को अर्जेंट टाइम आ गया, प्रायोरिटी टाइम आ गया तो वो पहले आ जाएंगे. बट मेजोरिटी वैसे ही वर्क करते हैं तब कैसे. ऑब्वियस नहीं तो लाइन अप नहीं करोगे तो आप ही मैस अप हो जाओगे ना लाइक थिंग्स विल मैस मेरा अप ये फॉर यू यार काम करना बंद कर देगा ये. ऑब्वियस इतना सारा कौन लेगा हाँ. like how was like this conversation like how did you feel this is our देखो, first time जब your first time शुरू में जब मैंने एक बार पहले, बहुत पहले एक बार ये किया है पॉडकास्ट वाला चीज, जब कोविड चल रहा था तब के टाइम पे. एंड वो कल्पेश ऐसे कुछ नाम था उनका, याद नहीं मेरे को, बट उनके साथ मैंने किया था. एंड वो टाइम पे मेरे को ऐसा लगा था यार मजा आया, ऐसी चीजें कर सकता हूँ मैं, रोज कर सकता हूँ ऐसे. उसके बाद से लेके अभी तक में कुछ 5 साल हो चुके okay हैं. anyways we are like towards end so towards what it was that question because it's like how did you feel this conversation or what your take on this conversation तो बेसिकली जैसे मैं बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा सा डर था ऑब्वियसली कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज मैंने अपना बायोडाटा तो भेज दिया था, बट मेरा क्वेश्चंस का आइडिया नहीं था. तो द क्वेश्चंस वर ग्रेट बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फर्स्ट टाइम एज वेल. तो होता है, बहुत सारी चीजें आती है, नेटवर्क इश्यूज तो नॉर्मल, वो मैं समझ सकता हूँ, वो हर जगह का वही आदत है. But if I take like as this 1 hour and 4 minutes, I think so. This was one of those days जो like मेरी memory block में रहने वाली है हमेशा के लिए. Because that was one of those days like podcast is everyone do podcast, but जब मजा आता है ना इंटरेक्शन में, तो वो एक पॉइंट ट्रिगर करता है कि हाँ ठीक है, ये याद रहेगा आपको. तो दिस वाज समथिंग लाइक दैट. एंड मैं वेट करूंगा कि कभी लाइव जाए यूट्यूब पे.
तो डैट मैं अपने सारे दोस्तों को भेजूं और सबको बोलूं भाई शेयर करो इसको, क्योंकि so दिस इज समथिंग आई डन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, लाइक ऐसे लाइक प्रॉपर पॉडकास्ट फॉर्मेट में, बिकॉज वो जो हुआ था वो तो इंस्टाग्राम पे लाइव था, तो वो okay. मजा नहीं आया था वैसे, मतलब वो बहुत ज्यादा नेटवर्क कर रहा था, बट यहाँ पे मजा आया, प्लस क्वेश्चंस जो आप लोग को जो बायोडाटा जो आप लोगों ने मेरा लिया उसके हिसाब से जो आप लोग क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं, दैट वाज हैंड्स डाउन गुड, बिकॉज उससे anyone can understand what exactly is my life and how exactly the things were, and जैसे लिखे your unscripted greatness, so it was not scripted at all, because literally मेरे क्वेश्चंस का आइडिया नहीं था, and I was like भाई ये लोग कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पूछेंगे ना, तो फिर आई वाज लाइक देखा जाएगा यार, नहीं होगा तो कटवा दूंगा, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं बट बट हाँ मेजोरिटी ये चीज था कि हाँ ठीक है, मतलब अगर मेरे को किसी को सजेस्ट करना हो तो मैं पक्का सजेस्ट करूंगा ऐसा, लाइक दे कैन लर्न एटलीस्ट समथिंग, बिकॉज आई थिंक जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन ड्राफ्ट किए ना उसके हिसाब से आई थिंक कोई भी जो देखेगा इसको ही और शी कैन लर्न समथिंग इम्पैक्टफुल, एंड it was kind of like we are starting a community club, so it is kind of a community where you are igniting sparking conversations, and वो किसी ना किसी को तो इंस्पायर करके जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है, तो या ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस टू हैव Thank लाइक you. ऑल It दोस means a lot. सेशंस Means दैट a इज lot. कमिंग. Means a lot. You are gonna be a forever part now. Yes. No, like Absolutely. we have got support from you as well, right? Like, you Mhm. have given your support to us, like सब चीज बताना, हर टाइम पे एडजस्ट करना भी, the fact of इसके पहले वाला conversation was also like very good, so it was like a mutual support from your side Ah. also. It was very great support, so thanks to you as Thank well. you. Thanks a lot. And it means उस a lot. देखो इस सब में चीजों में ना, मैं ईगो पे जाऊँ या फिर नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, कोई भी इतना बिजी नहीं होता, टाइम निकाल सकता है अगर निकालना चाहो तो. इसके बाद कोई busy नहीं होता. ये 1900 वेंचर आपका. True. It was nice interacting with you as well. Yes. लिया. हाँ आप एक साल पहले आए थे ना, एक साल पहले आए थे और अब एक साल बाद हमारी कॉन्वर्सेशन इसमें हो गया, ऑनलाइन हो गया, हाँ, मैं एक तो साल हो मतलब गया. बहुत टाइम बाद हो रही है कन्वर्सेशन मेरी आपसे. It's like long back. It's always nice interacting with you. हमेशा की तरह. ये is first time. हाँ. Yeah. This Yeah, is first time. this is first time. नहीं फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम हाँ, ऑफ second. स्क्रीन था. Yes. Off screen. तो वो भी जरूरी है. हाँ वो भी जरूरी है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए Correct. सामने वाले से पूछने के लिए. Thank you for your time. Thank you. Thanks a lot. सेम हियर. गुड We'll नाइट. see you in the next one. We'll shoot a part 2 for you. Yeah. Yes. Yes. Absolutely. Okay. Okay. Done. Okay. Bye. See you. Okay. Bye. Bye. Good Bye. night. Bye. Bye. Good night. इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस. और इन शेफ की स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, सायोनारा. हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए पॉडकास्ट में.